Okay, so we are getting 10 in the integer part. So the hexadecimal equivalent to 10 is A. So we are writing A over here, and here we are getting 12 in the integer part. So the hexadecimal equivalent to 12 is C. That's why we have written C over here. Okay, so again, this is repeating, 8.800 is repeating. So we will stop here. Okay, so the answer is point AC base 16. That's it. Now, Ma'am, can you show the last slide? yeah, sure. Ma'am, in such conversions, we will always get either repeating or terminating decimals. Yes, repeating. It is not necessary that you will get repeating. But if you are not getting a repeating decimal, you can stop after 4 or 5 lines. Okay, 4 to 5 lines you can stop, because if it is not repeating, you will not end up in doing the same question throughout the time of duration of your this thing na, exams. So just stop after 4 or 5 iterations. Okay. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes. and about the previous question, ma'am, how to convert 42.6 into binary? Yes. Ma'am, and how do we convert 42 binary? And You want me to tell you how to convert 42 into octal, right? Am I ma'am, right? into binary. 42 into binary. Ma'am, 42.675 in binary, he's saying. Okay, okay. Actually, his voice is yes, ma'am. breaking. That's why. Okay, you want it. You want me to convert the whole for you. Okay. ठीक है. तो we'll start converting 42 into binary. How we do it? We will divide 42 by 2 and we'll note down the remainders. Okay. So this will be 2 and 1. The remainder will be 0. Again, we will divide 21 by 2. This will be 2 ones are 2 and 10. 10 and 0. remainder 1. Yes, and remainder will be 1. Okay. Then we'll again divide 10 by 2. This will be 5. The remainder will be 0. Then we'll divide 5 by 2. The remainder will be 1. Then we'll divide 2. I hope you can see this. The remainder will be 0. Then we'll divide 2. The remainder will be 1. So we'll write it in bottom to top. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, so whenever we are converting to a kind of system like hexadecimal or binary, then yes. the number which comes out to be in the integer part will be acceptable to that system only, or it could be any number. I didn't understand what you asked. Please pardon. Like, for example, when we multiplied 0.675 into 16 to convert Yes. it into hexadecimal, Yes. the number which turned out in the integer part came out to be 10. So we had to use 8 to represent it. Yes. But, yes. So is it possible that 10 sometimes comes out in the binary part as well? No, it can't come. Binary, whenever you will multiply anything by 2, the number will be between 0 to 9 only. If it is a decimal number, the number will be in between 0 to 9 only. And if you will multiply it by 2, the number just next to the decimal, it will be between 0 to 9. और कोई number तो हो नहीं सकता है. ठीक है? And when you will multiply any number by 2, you will get either 0 or 1 at the integer's place. You cannot get any other number. Okay, same is the case with octal and hexadecimal also. In octal also, you will get only numbers from 0 to 7 on the integer part. You cannot get 8 in that. Okay, 8 की table देख लो. Okay, ma'am. 8 का मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन जो होता है 8 into 9 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 72 मिलेगा. So 7 is the maximum number that we'll get in multiplication with 8. तो integer part में उससे ज़्यादा कभी exceed करेगा ही नहीं. Sorry. Mic, ma'am, one student had his mic on.
Okay. So you got it? Means now you can do this conversion of 42.675. Any confusion? And after we have obtained separate values 42 and but we have to add them. Yes, we'll add them. Sort of Whatever we got in the last slide, that was just a second. So whatever we will get in the last slide, we will write it after this. Okay. 1010. Okay, ma'am. So Just a after the second. 0, we'll add the multiple integer part to this. Yes. So for example, if we get 1, then after 0, we will write 1. Oh, yes. Okay. I don't know what is the problem with my computer right now. It's not responding. Just a moment, please. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, it's Yes, ma'am. paused on, I don't know, it's not hand, but it's paused on this slide only. It's not moving. It's because of Zoom. Try to restart your screen sharing. No, keyboard is also not working. Smart. Just a moment. Let me open the taskbar. Aditya, please turn your mic off. Yes. What happened to this here? Windows तो open हो रहा है desktop पे. Let me go to the settings. Please wait for a moment. I don't know what's wrong with this. Okay, finally, I guess. Everything on my desktop is stopped. Then you should restart Zoom. I think I should restart Zoom.
ये नहीं रहा है इसमें डेस्कटॉप में, मतलब विंडोज ये खुल रहा है लेकिन डेस्कटॉप ये हैंग हो गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उसको बंद करो, टास्क मैनेजर में जाओ। कहाँ खुला है? नहीं इसी पे खुला है ना, यहाँ पे रुक जा रहा है टास्क मैनेजर। तो दोबारा रिस्टार्ट कर लो। ज्यादा बार क्लिक में करोगे तो और लेट होगा, वो होगा ना। कोई बात नहीं, हेलो बोलो कि 2 मिनट रुक जाओ। हेलो Yes, ma'am, we are able to hear you. please wait for few minutes, I need to restart my system. Okay, I'll Okay, join ma'am. again. Geeta ma'am, I will join again. You should make us host. I don't know. Actually, it's not working, so I'm not able to make host to anyone. I'll just switch it off, and someone will be automatically the host, na? Yes, ma'am. Okay, I'm restarting my system. Please wait. Students, wait for 5 minutes. Ma'am will join again. Okay.
Ma'am, your voice is not there. No, ma'am, you are not audible. Hello. Yes, ma'am. Now you are Yes, audible. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now let's start. I don't know what was the problem. I'm sharing the screen once again. So we were here. Okay. I hope you all understand how to convert the fractional part into binary, octal, and hexadecimal. So let's continue with non-decimal numbers with fractional parts to decimal. Means how to convert the fractional parts of binary, octal, and hexadecimal to decimal. So जैसे हम लोग नॉर्मल कन्वर्जन्स करते थे ना, जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट्स होते थे, उसमें व्हाट वी डू, वी डिवाइड द नंबर्स बाय द पोजीशनल वैल्यूज. तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे. बेस वैल्यू की पार्ट्स में हम पोजीशनल वैल्यूज रखेंगे और हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पोजीशंस फिर -1 से चालू होंगे. यस, राइट. तो उसमें क्या होता था, हम अगर सपोज मेरे पास कोई नंबर है, होता था 1 0 1 है, ये बाइनरी में है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था, तो इसकी पोजीशनल वैल्यू इज 0, 0 की इज 1 एंड और इसकी क्या होती थी 2. तो व्हाट वी डू, वी यूज्ड टू डू 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 0 2 to the power 0. हम ये करते थे.
फिर आंसर हमारा आ जाता था 4 + 0 + 1, तो आंसर आ जाता था हमारा 5। ऐसे ही होता था। नाउ अब इसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट हम इंक्लूड कर देते हैं, लाइक 1.101 है, ठीक है, तो अब इस वाले की जो पोजीशनल वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर इसकी 0 है, इस वाले की अगर पोजीशनल वैल्यू 0 है, तो इसके बाद वाले की क्या होगी, -1 होगी, इसकी होगी -2 और इसकी होगी -3, ठीक है। तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 × 2 to the power -1 plus 0 into 2 to the power -2 plus 1 into 2 to the power -3। समझ में आया? सिमिलरली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए भी होगा, बस वहां पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 8 और 16। तो देखते हैं आगे। ये है, अब देखो इसमें पूरा एक बाइनरी नंबर लिया है जिसमें नॉन फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल पार्ट्स दोनों हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो हो रहा है, आफ्टर 0 में बताती हूँ आप लोगों को, 1 × 2 to the power -2, 2 to the power -1, 2 to the power -1 क्या होता है, 0.5 होता है। वैसे ही यहाँ पे 0 × 2 to the power -2 है, तो 0 से मल्टीप्लाई है, इट विल बी 0। और ये 2 to the power -3 है, 2 to the power -3 की वैल्यू क्या होती है, 0.125। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.625। अब जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 37.625। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल। सिमिलरली ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 to the power -1, 8 to the power -2 से करते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ऑल यू नीड इज द फास्ट कैलकुलेशन कि 1/8 और 1/8 स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, या इसको लर्न कर लीजिए आप लोग, तो आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 स्क्वायर आपको पता ही है, 1/8 स्क्वायर आप कर लोगे अगर लर्न, तो योर कैलकुलेशन विल बी फास्टर। ओके, तो यहाँ पे भी 8 to the power -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर्स होंगे उनको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐड कर लेंगे और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करके फिर दोनों को इकट्ठा ऐड करके इट विल बी आवर आंसर। सेम इज द केस विद हेक्साडेसिमल। यहाँ पे 16 की पार्ट्स में जाता है, 16 to the power -1, 16 to the power -2। ओके, अब who will tell me कि अगर बाइनरी है तो उसको फ्रैक्शनल बाइनरी और फ्रैक्शनल बाइनरी पार्ट को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो प्रोसेस तो सेम, जैसे हम नॉन फ्रैक्शनल को करते थे वैसे ही फ्रैक्शनल को करते हैं। बस पहले वाले में क्या था, जब डेसिमल से कन्वर्ट करते थे तो हमें डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन करना होता था। मैम जैसे उसमें करते थे तो 3 और 4 की ग्रुपिंग करेंगे। yes, हाँ राइट। यहाँ पे भी हम 3 की या 4, जब हमें ऑक्टल में चेंज करना होगा तो हम 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग कर लेंगे, और अगर हेक्साडेसिमल में करना होगा तो 4 बिट्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका बाइनरी नंबर है 10101100.01011, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 3 के ग्रुप्स बनाए। तो जब हम नॉन डेसिमल की बात करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर राइट में कोई ग्रुप नहीं बनेगा तो हम उसके आगे 0 ऐड कर देंगे। गॉट इट? तो देखो जब यहाँ पे डेसिमल के पहले वाला था तो इसमें मैंने एक ग्रुप बनाया 100 का, दूसरा बना 101 का, और तीसरे में मुझे सिर्फ 1 और 0 बचा था तो मैंने उसके पहले एक 0 ऐड कर लिया। ये तुम्हारा नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है। अब when we'll go to the fractional part, what we will do, we will start grouping from left to right, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट 3 के ग्रुप्स बनेंगे। तो पहला ग्रुप जो बन रहा है वो 010 का बन रहा है, बट लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ 11 मिल रहा है, ये 2 ही डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद एक 0 ऐड कर देंगे अपनी तरफ से,
ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा 0.5 और 0.50 में कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता है। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जो हम पहले करते थे 5 लिखें या हम 0.5 लिखें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डिजिट विल रिमेन सेम, द नंबर विल रिमेन सेम। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम करते थे नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो हम पहले 0 ऐड करते थे, और जब नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए करेंगे तो हम बाद में 0 ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैंने 3 की ग्रुपिंग कर ली। अब इनका इक्विवेलेंट बाइनरी में लिख दूंगी। ठीक है, तो 010 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है? 2, और 110 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 254.26 बेस 8। ठीक है, ऑक्टल में। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल के लिए भी करेंगे। हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। बस ग्रुपिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि डेसिमल पार्ट कितने किधर है और नॉन डेसिमल, उसमें गड़बड़ मत करना। अगर उल्टे साइड से कर दिया ना कि सारा एक ही साइड से ग्रुपिंग कर दी, तो आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो नॉन डेसिमल पार्ट का हम राइट टू लेफ्ट करते हैं और डेसिमल पार्ट का लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 4 की ग्रुपिंग की हुई है। 0101 0101 4 का ग्रुप बन गया। अब हमारे पास क्या लेफ्ट आउट बचा? 1 बचा। तो इसके आगे हमें कितने जीरोस ऐड करने होंगे? 2 जीरो। तो मैंने 2 जीरोस ऐड किए। अब ये क्या होता है? 12 + 8 सॉरी 8 + 4 12। ठीक है, 8 + 4 12 मीन्स 12 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होता है? C होता है। तो इसलिए यहाँ पे C लिखा हुआ है। ठीक है, तो द आंसर विल बी 0.5C, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसका, और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का AC। तो AC 0.5C हो गया इसका आंसर। क्लियर है? यस मैम। सो आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ना, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय पीपीटी। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है आप लोगों का बाइनरी एडिशन। हम बाइनरी एडिशन देखेंगे अब। सारे कन्वर्जन्स हो गए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, फिर पूरा पीपीटी भेजोगे ना? हाँ, पूरा पीपीटी भेजूंगी। अब देखो, नेक्स्ट इज योर बाइनरी एडिशन। इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो बेसिक होता है। जब हम, ये आप लोग मुझे बताओ, 0 + 0 क्या होगा? 0 0 0 0 + 1 क्या होगा? 1 1 और 1 + 1 क्या होगा बाइनरी में? 11 11 नहीं, 1 1 is 2। ठीक है, इन बाइनरी वी कॉल इट एज 1 1। ठीक है, बट डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? 2। तो जब भी हम 2 लिखेंगे तो इट विल बी 1 1। ठीक है, अब देखो यही एडिशन रूल फॉलो होता है हमारे बाइनरी। मैम, इट इज 1 0 राइट? नो, यस मैम, इट शुड बी 1 0 For 2 it is 1 0. For 3 it is 1 1. Okay, for it is for 2. Okay, 1 + 1 + 1. This will be 1 1 1 1. Okay, so जब भी हम बाइनरी की बात करेंगे we'll talk in terms of 1 and 0 only. ठीक है, तो ऑल्दो इन डेसिमल अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जब हम कैरी करते हैं, लाइक 1 + 1 + 1 मैंने किया, तो 1 + 1 तो होता है 1 0, है ना? अब इसमें मुझे ये 1 1 कैसे मिला? ठीक है, तो बेसिकली दिस 1 + 1 इज
1 0 प्लस 1। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 0 प्लस 1 किया, दैट वाज 1, एंड फिर 1 को हमने जो हमारा कैरी था उसको अलग से लिखा है। क्लियर है? ये 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 कैसे आया? चलो मैं फिर से बताती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो 1 प्लस 1 जो होता है वो 1 0 होता है, जिसमें 0 हम लिखते हैं एज अ आंसर, और 1 जो होता है वो कैरी पे जाता है हमेशा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखो जैसे मैंने 1 0 प्लस 1 1 किया है, या मैं करती हूँ 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 ऐड हुआ, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 एज इट इज उतर जाता है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं। बट अगर मेरे पास कोई नंबर है 1 1 प्लस 1 है सपोज यहाँ पे, अब इसको मुझे ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 0 होगा, जिसमें 0 मैं लिखूंगी, और जो कैरी होता है उसको हम अलग से यहाँ पे लिखते हैं, है ना, टेंस की प्लेस पे या नेक्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, कैरी लेके जाते हैं। तो बाइनरी में क्या होगा, सिर्फ 1 ही ऐसा डिजिट है जो कैरी में जा सकता है, और कोई नंबर तो होता नहीं है बाइनरी में। तो 1 जो है यहाँ पे कैरी आएगा, और ये कैरी फिर दूसरे नंबर में ऐड होगा। अगर यहाँ 0 होता तो 1 प्लस 0 हो जाता 0, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, अब इसका अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो ये क्या होता है, ये 3 होता है और ये 1 होता है। मैम अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अब ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। 1 plus 0 is 1 0. Sorry, 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is 1 0. ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस 1 0 में 1 और ऐड करना है, 1 0 प्लस 1 मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से ये मेरा पहले 0 प्लस 1 होगा, क्योंकि जब हम इसको अरेंज करते हैं रो वाइज तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिट बाय डिजिट हम ऐड करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा डिजिट बाय डिजिट ही होता है ना। तो हम 0 प्लस 1 क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, और ये वाला 1 एज इट इज उतर जाएगा। नॉर्मल ऐसे ही तो होता है एडिशन। अगर मैं 10 प्लस 1 कर रही हूँ, 10 प्लस 1 नहीं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ इसको 20 प्लस 2 लिख रही हूँ, सपोज 20 प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 0 इज 2 और 2 एज इट इज उतर जाएगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो वही केस यहाँ पे भी है, 1 प्लस 1 इज 1 एंड 1 तो एज इट इज उतर गया, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 1 1। इतना क्लियर है अभी? यस मैम। अब देखो आगे बताती हूँ इसके। अब हमें पता है 1 प्लस 1 1 0 होता है। अब अगर मुझे 1 प्लस 1 में 1 ऐड कर 1 1 में 1 ऐड करना है, ठीक है, मतलब 1 1 प्लस 1 करना है, तो 1 प्लस 1 पहले हम इस पार्ट को ऐड करेंगे डिजिट टू डिजिट, तो 1 और 1 क्या होता है, 0, कैरी क्या है, 1 कैरी। 1। ठीक है, अब ये 1 और ये 1 ऐड होगा, ये 1 और ये 1 ऐड होगा, तो अगेन ये 1 और ये 1 ऐड होके क्या देगा, 1 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 0, क्योंकि आगे तो कोई डिजिट और है नहीं जिसमें हमें उसको ऐड करना पड़े। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं हम लोग, या पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, 1 1 प्लस 1 1 जो मैंने किया है यहाँ पे, ये वाला क्लियर है। 1 0 प्लस 1 1 किया तो 0 प्लस 1 आया 1। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 0, तो 0 मैंने यहाँ पे लिखा और जो कैरी 1 था वो यहाँ आ गया। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? यस मैम। अब ये देखो 1 1 प्लस 1 1, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 0, तो 0 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और कैरी क्या हुआ, 1 कैरी हो गया इसका। ठीक है, 1 प्लस 1 1 0 हुआ, 0 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 इसका कैरी हो गया। ठीक है, अब ये वाला कैरी किस में ऐड होगा, इस वाले 1 में ऐड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 0 होता है। क्लियर है?
समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब ये देखो, ये 1 0, ये वाला तो मैंने 1 ऐड कर लिया यहाँ पे, ये 1 था और ये वाला कैरी यहाँ पे था। ठीक है, तो 1 + 1 1 0, तो इस कैरी और इस 1 का रिजल्ट मुझे क्या मिला? 1 0 मिला। अब इस 1 0 को हम किस में ऐड करेंगे? इस वाले 1 में। ठीक है, अब 1 0 + 1 क्या आएगा? 1 1 आएगा, 0 + 1 1 और ये वाला 1 1। ठीक है, तो अब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? इसका 1 1, जिसमें से 1 एक मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरा 1 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हो गया 1 1 0। क्लियर है? देखो एरोज दिख रहे हैं इसमें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एरोज देखिए। 1 + 1 जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसका रिजल्ट आया 1 0। इसका 0 मैंने लिख दिया यहाँ पे और कैरी 1 यहाँ पे होल्ड करके रखा है। अब इस कैरी को और ये वाले 1 को मैंने ऐड किया है, जिसका रिजल्ट आया है 1 0। ठीक है, अब इस 1 0 में मुझे क्या ऐड करना है? ये वाला 1 ऐड करना है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब 1 0 + 1 1 1 होता है, तो इसका एक 1 यहाँ और दूसरा 1 इस प्लेस में। हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, भी लेते हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसका आप इक्विवेलेंट डेसिमल कैलकुलेट करके एडिशन करके आंसर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 3, और इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 3। तो आंसर 3 + 3 का क्या आता है? 6। तो 1 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो जब भी आंसर चेक करना हो तो आप उसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाउ 1 + 1 is 1 0? डेसिमल इक्विवेलेंट 1 + 1 का क्या होता है? 2 होता है, और 2 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमें मिलता है 1 0। इसलिए इन बाइनरी 1 + 1 is 1 0। गॉट इट? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। इस वजह से ना वो बार बार वो हो जा रहा है, वो हैंग हो रहा है बार बार। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, तो हम लोग इसको साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. So let's start with the first question. 1 1 0 1 plus 1 1 0 0. So you can 2 or 3 of you can unmute yourself and tell me the answer. 1 1 1 0 1. Okay, how? Ma'am, 1 plus 0 1. On the right. Okay. Yes, ma'am. So 1 0 is 1, 0 0 is 0. Now 1 plus 1 is 1 0. 1 0. So 0 will be here and 1 will be carry. Now we'll add this 1 and 1. This will give us 1 0. Now we'll add 1 0 plus 1. This will give us 1 1. So answer will be 1 1 0 1 1. Okay. So who is going to tell me the decimal equivalent of this? वन वन जीरो वन का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो एक ट्रिक और आप लोगों को बता देती हूँ बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए। ठीक है, हम 2 के मल्टीपल्स में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, ये 1 होता है हमेशा, इस प्लेस पे 2 होता है, इस प्लेस पे 4 होता है और इस प्लेस पे 8 होता है। ठीक है, 2 4 8, इसके बाद होता है 16, फिर उसके बाद होता है 32। ठीक है, तो वो 2 के मल्टीपल्स में जाता है हमेशा। तो जब भी आपको ओरल कैलकुलेट करना है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक जिस जिस प्लेस पे 1 है
उन प्लेस की डेसिमल इक्विवेलेंट हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8 होता है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 4 होता है। तो 8 + 4 हुआ 12 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1। तो 8 + 4 + 1 13। तो ये हो गया 13। ठीक है, ये लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं है। एग्जाम में आपको पूरा वो मल्टीप्लाई करके ही करना होगा। ओके, और यहाँ पे 110 है तो 8 + 4 क्या होता है 12। नाउ व्हेन वी विल ऐड 12 और 13 व्हाट विल गेट, विल गेट 25, जो कि ये होना चाहिए। तो आप बताओ ये सही है कि नहीं है। Yes, ma'am, it is correct. 16 8 + 16 + 1. ठीक है, तो 8 + 16 is 24, 24 + 1 25। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आप लोग खुद से सॉल्व करोगे इसको? मैं सेंड कर दूंगी, कर लेना, या मैं करवा दूं अभी? एक और करवा देती हूँ। ओके, 1 0 0 1 1 प्लस 0 0 1 1 1। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, व्हाट विल गेट? 1 0 इज 1, 1 0 is 1, 1 0 is 1, 1 0 is 1, and 1 1 is 1 0. Okay. No, I don't have any idea when is your exams are going to start. ठीक है, तो बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद से करोगे? यस मैम। चलो, सो हो गए। वेरी गुड, हो गए। So I'll start with Boolean algebra today. Do you have any idea कि Boolean algebra क्या होता है? Boolean आप लोगों ने algebra पढ़ी? algebra तो पढ़ी होगी सबने? Yes, ma'am. algebra क्या होती है? algebra में हम क्या करते हैं? बेसिक जो कहते हैं ना, एक लेमैन डेफिनेशन बताओ algebra की। Solving for variables. Boolean algebra में क्या होता है? हम Boolean वैल्यूज लेते हैं। Boolean में भी जैसे बाइनरी में आपका 0 1 होता है, Boolean में भी 2 वैल्यूज चलती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। ठीक है, और Boolean algebra में हम वही कि ये जो 0 1 है, इनके लिए हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं और उन वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं। मैम जावा में सिखाया था ये हमको। क्या? नहीं मैम, हमें जावा नहीं में सिखाया था। जावा में नहीं सिखाया था क्लास 10 में। सिखाया था, ट्रू फॉल्स था, बूलियन था। तो इसमें ट्रुथ टेबल्स वगैरह बनानी आती हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह आते हैं आप लोगों को? सीबीएसई को कुछ नहीं पता है। नहीं पता मैम, सीबीएसई को कुछ भी है। मैम आईसीएसई में थोड़ा बहुत सिखाया था, प्रोग्राम किए थे। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो ये करना तो है ही हम लोगों को। तो जिसने नहीं किया है उसको तो करना ही है, और जिसका हो चुका है वो रिवाइज कर लेगा, है ना। तो बुलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा, और ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज बूल। ये जॉर्ज बूल डिस्कवर्ड बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, और उनके नाम पे ही, ये बूल पे ही बुलियन नाम पड़ा था। ओके, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1954। ये 1 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी भी, तो ये नेम याद रखना होगा आप लोगों को। जो वैल्यूज होती हैं वो ट्रू एंड फॉल्स में होती हैं। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। इन अदर टर्म्स, इन कंप्यूटर टर्म्स, हम 1 को ऑन बोलते हैं और 0 को ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो डिजिटल वर्ड में जो भी है, लाइक हमारा सिस्टम या कोई भी मशीन है, वो बेसिकली वो ना 0 1 समझती है ना ट्रू फॉल्स समझती है। इट ओनली अंडरस्टैंड्स ऑन एंड ऑफ, या हाई और लो। ऑन एंड ऑफ भी नहीं, हम उसको हाई और लो बोलते हैं। जब सिग्नल हाई होता है तो इट इज 1, एंड जब सिग्नल लो होता है तो वो 0 होता है। ठीक है, तो कुछ भी डिजाइन करने के लिए डिजिटल वर्ड में वी नीड लॉजिक गेट्स या सर्किट्स और प्रोग्रामिंग, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स होती है।
बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स जैसे हम अलजेब्रा में लेते थे x, y, z, a, b, c, यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, अब अगर हम कहीं पे भी कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज मैंने 2 इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं, एक इनपुट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, वन और मोर इनपुट्स कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जितने भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, और जो भी इनपुट्स होते हैं, अगर मेरे पास 2 इनपुट हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 इनपुट हैं तो जो 2 इनपुट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन जो होंगे वो 2 to the power 2 में होंगे। यहाँ पे जो n है आपका वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर अभी नहीं क्लियर है तो आगे पढ़ोगे तो क्लियर होता जाएगा ये। स्लाइड शो में प्रॉब्लम हो रही है। Can you see this screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suppose we have 2 variables. ठीक है, एक वेरिएबल है x और दूसरा y है, तो अब x और y के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ, देखो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। लाइक अगर हम उसकी बात करें नॉर्मल तुम्हारे डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल ले रखा है सपोज x, लेट मी एक्सप्लेन, फिर समझ में आएगा। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सपोज x इज माई वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू 0 to infinity में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो। बट इन बाइनरी, इन बूलियन, x की वैल्यू, x की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर 0 और 1। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो x की वैल्यू जो है वो भी या तो 0 और 1 हो सकती है और y की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि x और y मुझे कहीं पे भी एज अ इनपुट देने हैं, तो मेरे पास इन चारों के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या तो x और y दोनों की वैल्यू 0 हो, या x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 हो, या y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 हो, या दोनों की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है इसमें मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं मेरे पास। अगर मेरे पास ये जो n मैंने 2 to the power n है, तो n ये है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 4, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 कॉम्बिनेशंस। अभी ये चीज क्लियर हुई? मैम 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते ना मेरे को। नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो भी मैं बताती हूँ। ये किसने लिखा था, रजत। रजत, यस मैम। क्लियर है ये चीज? हाँ मैम, लेकिन अगर कोई थर्ड वेरिएबल आ गया उसकी वैल्यू भी 0 to 1 के रेंज में हो जाती है। हम यहाँ पे बताते हैं, मैं बताती हूँ। ठीक है, लेट्स सी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। ठीक है, तो x की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 to the power 3, दैट इज 2 to the power 3 8। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 8। ठीक है, तो x की, लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि तीनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, दूसरा x और y की 0 हो, z की 1 हो। तीसरा y की 1 हो, x और z की 0 हो। चौथा x की 1 हो, y और z की 0 हो। ठीक है, ये तो मैंने 4 बना दिए। पांचवा क्या हो सकता है कि किसी एक की 0 हो, बाकी दोनों की 1 हो। तो मैंने x को 0 लिया और y और z को 1 लिया। अगेन हम x और z को 1 ले लें, y को 0 ले लें। ठीक है, नेक्स्ट x और y को 1 ले लें और z को 0 ले लें। ठीक है, अब लास्ट क्या होगा, हमारी तीनों ही वैल्यूज 1 हो सकती हैं। जैसे तीनों 0 हो सकती हैं वैसे तीनों वैल्यूज 1 हो सकती हैं। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 1, 2, 3, 2 to the power 3, 8, 5, 6, 7 एंड 8। अभी क्लियर है?
तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 16। क्लियर है ये चीज? मैम ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें जो वैल्यूज है वो बस 1 और 0 ही होता है क्या? हाँ, बिकॉज बुलियन इज अगेन यहाँ पे भी बाइनरी है, ऑन और ऑफ। मैंने अभी ये चीज आपको बताई, बुलियन वर्क्स इन टर्म्स ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू में वर्क करेगा या फॉल्स में वर्क करेगा, वेयर ट्रू इज फॉर 1 एंड फॉल्स इज फॉर 0। तो हम ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, मतलब f जहां 0 लिख रहे हैं वहां हम फॉल्स लिख सकते हैं, और जहां 1 लिख रहे हैं वहां हम ट्रू भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। बट t एंड f लिखना इज, मतलब डिजिट्स लिखना इज इजियर, इसलिए हम डिजिट्स लिखते हैं। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन भी आगे आप लोग अभी मैथ्स में शायद 12th में होगा ये चीज आपका। बुलियन अलजेब्रा पूरी तो नहीं होगी, बस थोड़े बहुत उसके टॉपिक्स होंगे, या प्रपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं, उसमें भी जरूरत पड़ती है, वहां पे टी एंड एफ के फॉर्म में ही पढ़ोगे आप लोग इसको। ये आपका लॉजिकल सर्किट्स बनाने में यूज होते हैं। जो सर्किट्स बनते हैं ना, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स वगैरह में जो सर्किट है उसमें गेट्स यूज होते हैं, लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, वहां पे यूज होता है ये। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, देखो डिजिटल वर्ड में यूज होता है, लॉजिक गेट्स में, सर्किट्स में और प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनपुट्स हैं, तो अब इनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे। लाइक आपका नॉर्मल अलजेब्रा में एक्स एंड वाई के फॉर्म में हम कुछ भी लेते थे तो उसमें हम अपने ऑपरेटर्स यूज करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही बुलियन में भी ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर होता है नॉट, दूसरा होता है एंड, और तीसरा होता है और। नॉट, एंड एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, जो नॉर ऑपरेटर होता है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, ऑपोजिट करने के लिए, फॉर नेगेशन। लाइक अगर मैंने इनपुट किया है 1 तो मुझे आउटपुट मिलेगा 0, और अगर मैंने इनपुट किया है 0 तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेरिएबल के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं, तो ये मेरा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये एक ऐसा ऑपरेटर है, या ये हम कहते हैं, आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर पढ़ा है? बाइनरी नहीं पता आप लोगों को? जैसे एडिशन होता है आपका, एडिशन ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो हमेशा दो वैल्यूज पे ही अप्लाई होता है। लाइक अगर 2 वैल्यूज नहीं होंगी तो हम ऐड क्या करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। सब्ट्रैक्शन, अगर हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 3 - 2 या 2 - 3, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑपरेटर ऐसा हो जो कि हमें सिंगल वैल्यू, मतलब जो कि सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट करता हो, जैसे होता है आपका प्लस माइनस यूनरी वाला। प्लस माइनस यूनरी वाला वो कुछ आउटपुट नहीं देता है। जैसे पार है 2 to the power 2, इन कंप्यूटर्स वी राइट इट लाइक दिस। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। नहीं, ये भी यूनरी नहीं होता है, हम ये बाइनरी होगा ना, एक्सपोनेंशियल है वो। हाँ, एक्सपोनेंशिएशन, राइट। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, या और कौन सा ऑपरेटर हो सकता है आपका मैथमेटिक्स में बाइनरी? एक्सपोनेंशिएशन तो होता है, निगेशन ऑपरेटर भी होता है, बट अगर हम -2 लिखें तो एज इट इज है ये, मतलब 2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा है, इट इज एन इंटीजर ओनली। हम -x लिख दे तो वो उसका साइन रिवर्स करेगा, तो वो एक्शन ही है। -(-x), राइट। अगर मैं -(-x) लिखती हूँ तो ये एक ऑपरेटर हो गया। तो ये आपका ये वाला जो ऑपरेटर है ये एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो वैसे हाँ सॉरी यूनरी। तो वैसे ही यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो नॉट है ये आपका एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। बाकी ये जो दोनों हैं एंड और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हाँ लॉग भी आपका, गुड, लॉग भी आपका यूनरी ऑपरेटर है। क्लियर है अभी ये? तो नॉट क्या करता है, इन्वर्टेड आउटपुट देता है। इन्वर्टेड या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या निगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 0 का ऑपोजिट है 1 और 1 का ऑपोजिट है 0। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एंड ऑपरेटर।
मैं स्लाइड शो नहीं चला रही हूँ क्योंकि उससे स्क्रीन हैंग हो रही है मेरी। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना देखने में? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो देखो अब एंड ऑपरेटर ऑलवेज वर्क्स ऑन टू वेरिएबल्स। इसमें ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें दो ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होंगे हमेशा। ठीक है, और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है ये, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसको हम x डॉट वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज, जैसे आपके एल्जेब्रा में होता है, अगर मैं एक्स वाई लिख रही हूँ तो इट मीन्स क्या है, ये x मल्टीप्लाइड बाई y है। सिमिलर इज द केस हियर। अगर मैं x y लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, तो x डॉट y तो नॉर्मल लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स द रिजल्ट एज 0। वैसे ही 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0। 1 0 0, बट 1 एंड 1 क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये जो टेबल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं हम, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखते हैं प्लस रिजल्ट। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रिजल्ट है, और ये दोनों जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बने, 4 कॉम्बिनेशन बने, और हर कॉम्बिनेशन का एक अलग से रिजल्ट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते, सपोज x, y एंड z। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आउटपुट क्या होगा, इसका आप लोग आउटपुट बना सकते हो? मैम सब में 0 रहेगा एक्सेप्ट द लास्ट वन व्हिच ऑल 3 हैव 1। यस यस, क्योंकि जितने भी मैंने अभी कॉम्बिनेशंस बनाए थे उसमें किसी न किसी एक की वैल्यू हमेशा 0 आ रही थी, किसी न किसी एक की वैल्यू 0 थी, तो सारे इसमें 0 रहेंगे। सिर्फ एक जो लास्ट वाली रो थी जिसमें तीनों कॉम्बिनेशन क्या थे, 1 थे, वहां पे आंसर रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो एंड ऑपरेटर पे मूव करते हैं नेक्स्ट, सॉरी और ऑपरेटर पे। मैम एंड और नॉट के अलावा एक और होता है ना, एक्सऑर? वो आपके गेट में आएगा, ये ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स यही 3 होते हैं। एक्सॉर जो होता है दैट इज गेट, वो लॉजिक गेट होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बाद हम गेट्स में आएंगे। अगेन और गेट भी आपका 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये लॉजिकल एडिशन होता है। ठीक है, जैसे 0 + 0 0 है, बट 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, इसमें देखो 0 + 0 मुझे मिला 0, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो क्या है, 1 है। ठीक है मैम लास्ट वाले में 1 और 1 तो, लेकिन 1 0 होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो है हम सिंगल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसको लॉजिकल एडिशन बोल रहे हैं, सिंपल एडिशन। ये बाइनरी एडिशन और इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये जो 1 है ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लिखती ट्रू प्लस ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू, ना कि 2 टाइम्स ट्रू। समझी? गॉट माई पॉइंट? इफ वी ट्रू प्लस ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू, not 2 times t or 2 times true. Okay, that's why we are writing 1 + 1 1 here. यही डिफरेंस है बूलियन अलजेब्रा और बाइनरी एडिशन या बाइनरी अर्थमेटिक में। ठीक है, वहां हम अर्थमेटिक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलजेब्रा यूज हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को इसीलिए पहले ही बताया, यहाँ पे 0 मीन्स है, अगर जहां पे भी हम 0 की बात करें वहां पे 0 का मतलब फॉल्स है, और जहां पे भी हम 1 लिख रहे हैं वहां पे मतलब ट्रू है। ठीक है, तो आंसर विल बी इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स ओनली। यहाँ पे 2 वेरिएबल 2 डिजिट्स के टर्म में कभी आंसर नहीं आता है। क्लियर है? बेटा मैं बताऊंगी गेट्स, अभी पहुंचने दो, लेट मी कम टू दैट टॉपिक, आई विल टेल यू व्हाट गेट्स आर। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको ऑपरेटर्स? यस मैम। अब देखो इन ऑपरेटर्स को यूज करके हम नॉर्मल कॉम्बिनेशंस बना के, जैसे हम
अलजेब्रा में करते थे एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स 2x + 3y या कुछ ऐसा करते थे और एक्स वाई की वैल्यू दे के फिर सॉल्यूशन निकालते थे, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम कुछ कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं हमें वेरिएबल्स के, और उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रुथ टेबल बनानी होती है, ठीक है। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मैंने सिंपल सा लिया है x + xy बार। तो xy बार का क्या, y बार का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। और xy बार का क्या मतलब है कि y बार, एक बार मैंने y पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद x और y बार में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेटर लग रहा है। फिर इस पूरे में कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, विद x और ऑपरेटर लग रहा है। क्लियर है? यस मैम। तो देखो एक्स वाई दो ही वेरिएबल्स हैं, तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4। तो 4 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। पहले मैंने क्या किया, y का निगेशन किया या y पे नॉट ऑपरेटर लगाया। तो 0 का ऑपोजिट हुआ 1, 1 का ऑपोजिट हुआ 0, फिर 0 का ऑपोजिट हुआ 1 और 1 का ऑपोजिट हुआ 0। इतना क्लियर है? नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब एक्स वाई बार कैलकुलेट किया। तो एक्स वाई बार के लिए मैं कौन कौन से इनपुट्स लूंगी, अब ये x एंड ये y बार, ठीक है। तो 0 एंड 1 मल्टीप्लीकेशन है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, एंड ऑपरेटर। 0 एंड 1 गिव्स 0, अगेन 0 एंड 1 गिव्स 0, 1 and 1 gives 1 and 1 and 0 gives 0। क्लियर है? हम सेकंड वाले में y के लिया। सॉरी वो मैंने गलती से कर दिया था। ओके ठीक है, ये 0 है, 0 and 0 gives 0। क्लियर है? अब हम अपने पूरे ऑपरेशन पे आ जाते हैं, x + xy बार। तो xy बार मुझे यहाँ पे मिल गया और x मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x और xy बार में और ऑपरेशन लगाएंगे। तो 0 और 0 गिव्स 0, 0 और 0 गिव्स 0, 1 और 1 गिव्स 1, 1 और 0 गिव्स 1। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर है? दिस इज आवर रिजल्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। Let's move on to our next slide, that is gates, logic gates। देखो किसी भी डिजिटल सिस्टम का की जो बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको हम गेट्स बोलते हैं, या नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे होते हैं। आप लोग कभी ये आपका फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, लॉजिक गेट्स जो है ना आपके फिजिक्स में, और आगे जब आप लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सर्किट्स बनाने के लिए ये सारे गेट्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये इसमें भी प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं, ठीक है। स्पेशली दी ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट ऑपरेटर है ना, ये आपका प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, जहां पे आपका कंडीशनल चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे इफ कंडीशन है, इफ दिस और दिस, तो हम इफ ट्रू और फॉल्स, इस वे में अगर हमें आंसर देना होता है तो वहां पे एंड और या नॉट ऑपरेटर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने खूब बेसिक सी प्रोग्रामिंग है, जब आपने वो यूज किया होगा, इवन नॉट के प्रोग्राम्स बनाए होंगे, या आपने उसके प्रोग्राम बनाए होंगे, ठीक है। या कह लो कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करते हैं कि 3 नंबर्स में से कौन सा लार्जेस्ट है, जहां पे भी कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है, वहां पे कहीं जहां हमें 2 कंपैरिजन्स हैं और उन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, या उन दोनों में से अगर कोई भी एक सही होगा तो हम ये आंसर देंगे, या जहां 2 कंपैरिजन इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पे हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक जहां पे अप्लाई हो रहा है वहां पे ये गेट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी किसने क्वेश्चन भेजा था, रोल जो है, रोल इसका यही है, जहां पे भी हम कंपैरिजन, जहां हमें कंपैरिजन करना है या इन्वर्ट करना है, जो भी सिग्नल मेरा आ रहा है, सपोज मेरा सिग्नल आ रहा है हाई और मुझे उसको लो में कन्वर्ट करना है, जहां पे भी इन्वर्ट करना है सिग्नल्स को, वहां पे हम गेट्स यूज करते हैं,
ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज योर लॉजिक गेट्स। ठीक है, और लॉजिक गेट्स में क्या होता है, एक या एक से, अगर हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, लाइक नॉट गेट की बात करते हैं, तो नॉट गेट इज ऑलवेज वर्क्स एज अ इन्वर्टर। ठीक है, तो जब भी इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो हमें सिंगल इनपुट मिलेगा, वो सिंगल इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन बाकी जितने भी गेट्स हैं वो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जितने कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, 1 या 1 से ज्यादा कितने भी इनपुट हो सकते हैं, 2 3 4 5 7 11 12 15, ठीक है 50, कितने भी इनपुट हो, बट आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। हमेशा आउटपुट जो होगा उसका एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, वही लॉजिक आपका एंड और या नॉट, ठीक है, या उनका कोई कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के मेन हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं, दो टाइप के गेट्स भी होते हैं इसमें, एक होते हैं, एक बेसिक गेट्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके मॉडिफाइड। ठीक है, तो बेसिक गेट्स जो है वो आपके 3 है, एंड और एंड नॉट। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस में हम आगे और पढ़ते हैं, जैसे एक्सॉर है, नैंड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक गेट्स बता देती हूँ। जैसे नॉट गेट है तुम्हारा, नॉट गेट को हम इन्वर्टर बोलते हैं। ऑपरेशन ये वही नॉट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो कि इन्वर्ट कर देता है। देखो इनपुट को, लाइक इसका इनपुट क्या है, ए है यहाँ पे, Where is the... यहाँ पे देखो इनपुट ए है और आउटपुट वाई है। यहाँ से देखो y इज इक्वल्स टू ए बार, या हम इसको नॉट ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो नॉट ए मीन्स y का ऑपोजिट। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। a की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू होगी 0। ये इसका डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम। सिंपल सा एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसके आगे एक छोटा सा नॉट बनाते हैं, इसको हम नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका हमेशा एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होता है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं मैम, अभी तो अभी क्लोज हो मैम, बंद हो गया। अभी आ रहा है मैम। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक ट्रायंगल, और उसके आगे इसको हम नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इट टेक्स सिंगल इनपुट एंड गिव्स सिंगल आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आता है एंड गेट। तो जैसे ऑपरेटर्स में इनपुट और आउटपुट होते थे ना, सेम आउटपुट यहाँ पे भी होते हैं, बस यहाँ पे क्या है, हम आपका एक गेट भी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये है आपका एंड गेट। तो ये परफॉर्म होता है, इसमें भी आपके, लेकिन इसमें जो इनपुट होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर। ठीक है, या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होगा a डॉट b, या जैसे हम लोग वहां कर रहे थे x डॉट y। इनपुट सिंबल कोई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, तो चाहे a b बोलो चाहे x y बोलो, बात सेम है। 3 वेरिएबल्स हैं तो a b c, 3 इनपुट्स हैं तो a b c या x y z। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, a डॉट b मिलेगा। ठीक है, तो a डॉट b मतलब एंड ऑपरेटर लग रहा है इसमें। जो इसकी ट्रुथ टेबल होगी इट विल बी सेम एज जो एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल थी। 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। क्लियर है इतना? यस। और नेक्स्ट है आपका और गेट। ये आपका और गेट का सिंबल है। ऑपरेशन इसका भी सेम एज और ऑपरेटर होगा, जैसे और ऑपरेशन में होता था। ठीक है, और इसमें भी इनपुट्स आपके 2 या 2 से ज्यादा होंगे। हम इसमें a और b भी लिखते हैं, a और b। ठीक है, या a प्लस b, प्लस का साइन होता है आउटपुट में। ठीक है, तो a भी आपका इनपुट प्रोवाइड होगा और आउटपुट देगा आपका a प्लस b। और ये इसका आपका लॉजिकल डायग्राम है, 2 इनपुट्स
और ये आपका गेट है, इसको हम और गेट बोलते हैं। इस तरह से इसका फिगर होता है, ठीक है। अब देखो लॉजिकल एडिशन है, इसमें भी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, तो सारे 1 होंगे। अगर एक भी 1 होगा तो रिजल्ट विल बी 1। ये आपका हो गया और गेट। अब इसके बाद आओ, ये आपके होते हैं जो नेक्स्ट गेट है आपके, वो हो गया आपके ये तीनों जो थे आपके एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये आपके बेसिक गेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, एडवांस्ड है या इनसे बनाए हुए गेट्स हैं, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन में बनते हैं। तो जो आपका नैंड गेट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। तो पहले जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें पहले एंड ऑपरेटर लगता है, फिर जो आउटपुट आता है उसका रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब A डॉट B हम कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, A B बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल है इसको और उससे कर लेते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे A B है तो पहले हम इसका A एंड B निकालेंगे, और फिर A एंड B का हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। क्लियर है इतना? अब हम इसका इन्वर्ट करेंगे, तो 1 का इन्वर्ट क्या हो गया, 0 का इन्वर्ट क्या हो गया 1, फिर 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1 और 1 का इन्वर्ट 0, ठीक है। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर नैंड गेट। तो बेसिक जो डायग्राम है, जो लॉजिक डायग्राम बोलते हैं, वो ये वाला होता है कि हम एक नैंड गेट बनाते हैं और इसके आगे एक ही इन्वर्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर नैंड गेट, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये दोनों गेट्स यूज कर रहे हैं, एक एंड गेट है और दूसरा नॉट गेट है, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम जो होता है नैंड गेट का वो ये वाला होता है, एक एंड। आप ये स्लाइड भेज रहे हो ना? क्या बेटा? आप ये स्लाइड ग्रुप में डाल सकते हो? हाँ बेटा मैं डालूंगी, मैं गीता मैम को दे दूंगी, वो शेयर कर देंगे, ठीक है। लास्ट भी आपको नोट्स मिली थी ना, लास्ट वाली दिया था सर, दिया था मैम। यस मैम। मैं शेयर कर दूंगी उनसे, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अब नैंड गेट के बाद आता है आपका नॉर गेट। अगेन जैसे नैंड गेट आपका एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है, सॉरी हाँ एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है, वैसे नॉर गेट आपका नॉट और का कॉम्बिनेशन है, नॉर एंड और का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नॉट एंड और, तो इससे क्या बन गया नॉर। तो हम और ऑपरेशन को रिवर्ट कर देते हैं, तो यहां से मुझे आउटपुट मिलेगा A प्लस B, और इसको हम रिवर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा A प्लस B बार। ओके मैं बस ये वाला एक्सप्लेन करके फिर मैं वो करती हूँ, ठीक है, क्लोज करती हूँ। अच्छा एक चीज और, मुझे इसके पहले प्रोसीड करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास से ना हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन के लिए ओके मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। पाइथन के लिए आप लोग का एक सॉफ्टवेयर है स्पाइडर, जिसपे आप लोगों को वर्क करना है। मैम पाइथन आईडी पे नहीं कर सकते? आपके करिकुलम में स्पाइडर है आईडी मैम, क्योंकि डायरेक्टली स्पाइडर आईडी पे कर लो वो, हाँ मतलब आपको से फैमिलियर होना चाहिए। बाकी जो प्रोग्रामिंग है वो तो किसी भी उसमें आईडी पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एनाकोंडा से डाउनलोड करके हेडर में मिलेगा ना। आवाज क्रैक हो रहा था। इट्स SPYDER। मैम ये एनाकोंडा के अंडर ही एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा। एनाकोंडा डाउनलोड करो, उसमें स्पाइडर भी मिलता है और एक और है कोई उसमें, जुपिटर भी है। हाँ जुपिटर। तो जुपिटर आपका उस पे चलेगा क्रोम पे, मतलब किसी भी वेब पेज पे चल जाएगा, वेब ब्राउजर पे, और आईडी आपका स्पाइडर तो नॉर्मल आईडी ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको डाउनलोड करने में, आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना, बाकी मैं जो सारी चीजें हैं उसकी उससे रिलेटेड वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है।
ठीक है मैम। तो नेक्स्ट टर्न पे ये गेट्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2 गेट्स और बचे हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरी है। तो मैम पहला और ये वाला पीपीटी सेंड कर दो। हाँ मैं दोनों सेंड कर देती हूँ आपको, तीनों सेंड कर देती हूँ, नंबर सिस्टम का भी सेंड कर देती हूँ, ये भी और वो भी कर देती हूँ दोबारा से। ओके मैम। तो नेक्स्ट टर्न से हम नॉर गेट करेंगे। रिकॉर्डिंग बेटा मेरे पास नहीं होती है, वो क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है, तो अपने नाम से ही मांगना होगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, बाय फॉर नाउ। बाय मैम। बाय। Students, take 10 minutes break. We'll start next lecture at 10:50. Okay? Okay, ma'am. Yeah.